عزیزان گرامی، حسین کو یا حسین کے گھرانے کو اجڑنے میں اب چند دن باقی ہے۔ عزیزو، کچھ ہی دن میں زہرا کا لال، رسول کا نواسا اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ عزیزو، یہ ایام یا یہ دن جو آج کل چل رہے ہیں یہ حسین کے نام سے منسوب ہے، یعنی محرم کو ہم زیادہ تر نہیں بلکہ اسی نام کے لیے جو ہے وہ محرم ایجاد ہوا ہے۔ عزیزو، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں یا یہ دن جو کچھ ہمارے درمیان سے گزر گئے، وہ سب جو ہے وہ کربلا سے، امام حسین سے کوئی نہ کوئی واسطہ رکھتے ہیں۔ اچھا، محرم کا جو ہے وہ چاند نمودار ہوتا ہے حسین جو ہے وہ دماغ میں آ جاتے ہیں۔ عزیزو، کیا امام حسین علیہ السلام صرف ہمارے اور آپ کے لیے محرم تک محدود ہے کہ بس محرم آیا، مجلس کی، ماتم کیا، حسین حسین کیا اور عزیزو، امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر ذہن آمادہ ہے تو انہوں نے صرف محرم میں نہیں بلکہ انسان کے لیے پوری زندگی کو راہ ہدایت بنا کر رکھا ہے۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام اور یہ دنیا یا یہ انسانیت ایک الگ ہی رشتہ رکھتی ہے۔ رسول خدا نے بارہا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ ان الحسین و مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ کیا کہا؟ رسول نے کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول نے کہا کہ ان الحسین و مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اتنا ہم نے امام حسین علیہ السلام سے درس لیا۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا تھا کہ کربلا جو ہے وہ برپا ہوئی ہے اور درس انسانیت کے لیے برپا ہوئی ہے۔ کربلا نے جو ہے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ کیا کہا رسول نے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسینیت کے راستے کی طرف چلے آؤ، نجات اپنے آپ مل جائے، بشرطے کہ اس شرط کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ حسینیت کے راستے پر چلیں۔ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے، یا اگر یہ کہوں کہ دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں، ایک یا تو حسینی ہے، ایک یا تو یزیدی ہے۔ تیسرا کوئی چیز یا کوئی انسانیت نہیں کہہ سکتی تیسری چیز جو ہے وجود دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو جو ہے حسینیت ہوگی یا یزیدیت ہوگی، یا اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی۔ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، یزیدیت کا راستہ اپنانا ہے یا حسینیت کا راستہ اپنانا ہے۔ جملہ بدل کر کہوں، جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ آج کل انسان کیا سوچتا ہے؟ جو کچھ ہے دنیا ہے،
مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان جیتا ہے، انسان ایسے زندگی بسر کرتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی مرنا ہی نہیں۔ قرآن میں خود آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، خدا نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ موت آ گئی، انسان جیتا کیسے؟ مولا کائنات کیا کہہ رہے کہ انسان ایسے جی رہا ہے کہ اس کو کبھی جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ مر گیا کوئی انسان، غسل دیا، کفن دیا، اور جو ہے اس کو قبر میں جو ہے وہ سلا کر آ گئے، دفن کر گئے، دفن کر کے آ گئے، بس آخری وقت ہے، لوگوں نے جنازہ دیا، اور جو ہے وہ ساتھ کہاں تک ہے انسان کا؟ قبر تک۔ اب آپ کی قبر میں کوئی سونے آنے والا تو نہیں ہے، یا میری قبر میں کوئی سونے آنے والا تو نہیں ہے۔ انسان کا اعمال یا انسان کی قبر کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں ایک روایت یاد آئی ہے، حدیث تو بیان کرتا چلوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس کو فشار قبر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں فشار قبر یعنی کیا؟ قبر کا دبانا۔ قبر انسان کو اور مردے کو ایسے دباتی ہے جیسے چکی دیتا، چکی دیکھیں نا آپ نے جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، جب گیہوں کا دانا اس کے اندر جاتا ہے اور کیسے وہ پیس جاتا ہے، ایسے ہی قبر جو ہے وہ انسان کو دباتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری روایت قبر کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں صلوات پر زبان کے بارے میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ زبان کو جگہ اپنی محفوظ رکھو، کوئی ایسے کلمات نہ کہو کہ جس سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گالی چیز ہے، گالی جو بہت زیادہ آج کے زمانے میں رائج ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا کائنات کہ انسان اگر ایک گالی بولتا ہے تو اس کی قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ بچھو جانتے ہیں نا، بچھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے لیے انسان کی قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے، اور اس بچھو کا ڈنک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو انسان تڑپ جاتا ہے۔ قبر ہے کوئی پرسان حال نہیں۔ عزیزہ نے گرامی، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو ایسے جگہ پر یا ایسے معاشرے میں یا ایسے انسان میں تبدیل کرے کہ جس کا تعلق اللہ سے، اپنے کو جتنا ہو سکے خدا سے جو ہے وہ قریب کرتے چلے جائیں۔ بہت سے طریقے ہیں اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنے کے۔ جانتے ہیں نا شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ کیونکہ اس نے غرور کیا تھا۔ جناب موسیٰ کا دور ہے، موسیٰ پیغمبر، شیطان آیا، آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 1003 نصیحت جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، جناب موسیٰ پہچان گئے کہ شیطان ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو کون ہے، میں تجھ سے اچھا ہوں، تو جا اپنا کام کر۔ جناب جبریل جو ہے نازل ہوئے، جناب موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ اس سے کہو کہ 3 نصیحتیں جو ہے وہ کر دے، 1000 جو ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تو 3 جو ہے وہ اپنی نصیحتیں 1003 بتا رہا ہے، تو 3 جو ہے وہ بتا دے اور 1000 جو ہے وہ اپنے پاس رکھ۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم کبھی نیکی کا ارادہ کرو تو اسے جو ہے فوراً انجام دو، ورنہ جو ہے وہ تمہیں شرمندہ کر دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اچھا کام کروں
بعد जाके नमाज पढ़ लेंगे, या मतलब सदका करना है, थोड़ा ज्यादा पैसे हैं, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए का सदका। इंसान खुदा कह रहा है कि तुम जो है वो मेरी राह में 1 रुपया अगर खर्च करोगे मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, बशर्ते कि खुलूस नीयत से हो। क्या कह रहा है जनाब मूसा से शैतान कि तुम जो है अगर नेकी का इरादा करो तो उसे फौरन अंजाम दो, ताखिर मत करो, देर मत लगाओ। अच्छा, दूसरी क्या है, कहा अगर तुम किसी नामहरम के साथ हो तो जब मेरा ख्याल दिल में रखो, वरना मैं तुम्हें जो है बहका दूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं, यानी ये कहो कि अगर किसी नामहरम के साथ है तो ये सोचो कि शैतान का काम है जो ये बहका रहा है। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानो, ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है, इंसान ये गुनाह नहीं करेगा। और तीसरी चीज और सबसे अहम चीज क्या है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपनी जगह को तब्दील करो, यानी अगर कोई बैठा हुआ है उसको गुस्सा आ रहा है तो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो जाए और दूसरी जगह पर चला जाए, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तो मैं जो है वो दोनों को लड़वाने के लिए जो है आमादा कर देता हूँ। जब तक दोनों की लड़ाई नहीं होती मैं जो है उसके दिमाग से, उसके ज़हन से नहीं निकलता। अच्छा, गुस्सा जनाब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का दौर है, सवाल कि गुस्सा जब इंसान को आता है तो अपने ऊपर कंट्रोल, जब ये तीनों नसीहतें हो गई तो इब्लीस क्या कहता है जनाब मूसा से, क्या कहता है तो मैंने आपको 3 नसीहत की है, अब खुदा से जो है मेरी बख्शिश चाहो। 3 चीजें तो खुदा से अपनी बख्शिश मांग रहा है, कोई बात नहीं, तेरी ये भी आरज़ू पूरी कर देता हूँ। जनाब मूसा मुखातब हो खुदा से, तो खुदा ये अपनी बख्शिश चाह रहा है, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, एक शर्त है, क्या, उससे जाकर कहो कि आदम की कब्र पर जो है वो जाकर सजदा करे। तवज्जो रखिएगा, आदम की कब्र पर जाकर जो है वो सजदा करें। अब शैतान है, गुरूर की वजह से जो जन्नत से निकाला गया था, गुरूर उसमें बाकी है, अगर गुरूर ना होता तो शैतान ही ना होता, गुरूर ना होता तो जनाब आदम को उस वक्त ही सजदा कर देता। जनाब मूसा से कहता है शैतान कि मैं जब आदम को जिंदा किया गया या आदम को बनाया गया, जब मैंने सजदा नहीं किया तो मैं उसकी कब्र पे जाकर क्यों सजदा किया? सलवात पढ़ा। साथियों का जमाना है, जो है वो उनके यहाँ कनीज़ें भी थी, गुलाम भी थे, दोपहर का वक्त था, गालिबन खाने का वक्त था, कनीज आई खाना पेश करने के लिए। कनीज को जो है वो ठोकर लगी, कनीज के जो हाथ में सालन का जो डोंगा था वो गिर गया, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कपड़ों पे गिरा। फौरन जनाब मूसा, इमाम मूसा ने आयत को पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल काज़िमीनल गैज़ आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जब तो सालन गिरा तो जनाब इमाम मूसा ने उसको आजाद कर दिया, राह खुदा में बचा तो आजाद है। इमाम ने आयत पढ़ी कि जो शख्स गुस्से को पी जाता है, दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह जो है उसको बख्शने वाला है, उस पर जो है वो रहम करने वाला है। मैं जो ये मजलिस पढ़ रहा हूँ इतने दिनों से, बुजुर्गों से माजरत, मैं अपने जवान भाइयों को जो है वो ज्यादा हिदायत की तरफ लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्ग बड़े जो है वो माशाल्लाह मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं अपने जवान भाइयों को जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, जो भी यहाँ मजलिस में बैठे हैं, जितना हो सके
अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा करो और जो है वो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो। अल्लाह जो है वो तवाबुर रहीम है, अल्लाह जो है वो बख्शने वाला है, अल्लाह जो है वो माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। अल्लाह का एक लक़ब है सत्तारुल उयूब। क्या? सत्तारुल उयूब यानी क्या? ऐबों को छुपाने वाला, गलतियों को छुपाने वाला। मौला कायनात कहते हैं कि अगर किसी इंसान में एक गलती देखो, अगर किसी इंसान में 99 बुराई हो, 99 बुराई हो और एक अच्छाई हो, तो उसको लोगों के सामने उस एक अच्छाई को बयान करो और 99 बुराई को जो है छुपा दो। अल्लाह को जो है वो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को जो है वो पर्दा डालने वाला है, ऐब छुपाने वाला है। वरना अल्लाह से कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम जो है कर रहे हैं और वो छुपी हुई है। मेरी मजलिस जो है जाहिरन बोर कर रही होगी, लेकिन जो है सोचिएगा कि कोई भी चीज मैंने इन 6 दिनों में गलत कही हो, अल्लाह सत्तारुल उयूब है। अगर अल्लाह हमारे एक दूसरे के ऐबों को ना छुपाता तो हम एक दूसरे के दुश्मन होते। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन होता। अजीजा ने गिरामी, अज़ादाना में सईदुल शोदा, अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह से जितनी हो सके तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि इंसान जो है वो तौबा करता है तो अल्लाह से करीब होता है। और रिवायत बताती है कि जब कोई जवान अल्लाह से तौबा करता है तो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि जवान का मर्तबा बहुत ज्यादा है। रिवायत बताती है कि जन्नत में जो है वो जवान जाएंगे, बुजुर्ग टेंशन न ले, बुजुर्ग भी जाएंगे, शर्त यह है कि बुजुर्ग जो है वो जवान होकर जाएंगे। अजीजा ने गिरामी, किसी अपनी मौत का जो है कोई भरोसा नहीं है, इंसान चलते हुए भी खत्म हो सकता है। हमारा और आपका साथ जो है कब्र तक है। कब्र में क्या होना है ये सोचे, कब्र में क्या लेकर जाना है ये सोचे। अजीजों, आज 6 मुहर्रम है और कुछ दिन रह गए हैं आशूर बर्पा होने के लिए, यानी कुछ दिन बाकी है करबला जो है वो रूनुमा होने के लिए। अज़ादारों, आप जानते हैं कि करबला में 75 यानी 75 इयर्स के ज़ईफ से लेकर 6 महीने तक का भी बच्चा है, जिसमें 18 साल का नौजवान भी है, 9 बरस का जो है बच्चा भी है, 7 साल का भी बच्चा है और 75 साल का भी ज़ईफ। सबने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और दीन पर कुर्बानी दी है। जहां एक जिक्र अगर करबला का होता है तो जिसमें 2 बच्चों का भी जिक्र आता है। इमाम अली की बेटी यानी जनाब ज़ैनब 1 बरस की हुई तो मौला कायनात ने कहा कहो बेटा 1, तो उसने कहा 1। कहो बेटा 2, तो पता है जनाब ज़ैनब क्या कहती है? कहा बाबा आपने जिस 1 का जिक्र ज़बान से करवाया है, मैं उस ज़बान से 2 का जिक्र नहीं कर सकता। कहना ये चाह रही कि अल्लाह एक है। अब जिस ज़बान से मैंने अल्लाह को एक माना है, उस ज़बान से मैं दूसरे किसी और का तस्वर क्यों लाऊं? करबला में अगर किसी पर सबसे ज्यादा मुसीबत और मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा है, तो जानते हो वो कौन है? जनाब ज़ैनब।
जनाब ज़ैनब को जो है एक लक़ब दिया गया है उम्मुल मसाइब, यानी मसाइब की मां। पूरा खानदान ही जनाब ज़ैनब का था। कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बेटा था, कोई भतीजी थी, भाई था। शबे आशूर जब सब माएँ अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए तैयार कर रही थी, वहीं पर जनाब ज़ैनब भी अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों को तैयार कर। रिवायत बताती है कि 9 या 10 साल उम्र होगी जनाब और जनाब मोहम्मद। जनाब और जनाब मोहम्मद यानी ओनो मोहम्मद को पूरी रात जनाब ज़ैनब नसीहत कर रही है। क्या कहती है? बेटा कल रोज़े आशूर अपने मामू पर अपनी कुर्बानी पेश कर देना। जनाब अली अकबर से पहले जो है तुम जो है करबल मैदान कारजार की तरफ चले जाओ। तवज्जो रखिएगा, गौर से सुनिएगा। क्या कहती है? एक माँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों से हाथ को जो है वो सर पर रखती है, बाल को संवारती है और कहती है बेटा देखो, अगर दरिया की तरफ जाना तो पानी ना पीना, क्योंकि हुसैन का बेटा 6 महीने का जो है प्यासा है। जनाब ज़ैनब पूरी रात जो है वो अपने बच्चों को तैयार करती है और मोहम्मद को रोजे आशूर आता है, सुबह नमूदार होती है। क्या देखते हैं कि अभी बच्चे जंग पर नहीं गए। बच्चों से पूछा कि बेटा क्यों अपने हुसैन के लिए, क्यों अपने मामू के लिए करबला में नहीं गए? जानते हैं बच्चे क्या कहते हैं? अम्मा ज़ैनब हम मामू के पास गए थे, लेकिन मामू ने कहा कि बेटा तुम मेरी बहन ज़ैनब की निशानी हो। पूरी रात जिसको जनाब ज़ैनब ने जो है वो तैयार किया, नसीहतें की, कहा बेटा अगर दरिया की तरफ जाना तो पानी ना पीना। मोहम्मद ये सोचना कि खैमों में 6 साल की बच्ची भी प्यासी है, 6 महीने का अली असगर भी प्यासा है। वो बच्चा वो कैसे आखिर मैदान करबला की तरफ जाता, मैदान कारदार की तरफ जाता, फुरात की तरफ जाता और पानी पीता। जनाब ज़ैनब जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई और कहती है भैया क्या मेरे बच्चों को अपने पर कुर्बान नहीं करने दोगे? कहा मैं इस सोच कर नहीं जा रहा हूँ, नहीं करबला में जाने दे रहा हूँ कि शायद कि जाफर ने मना किया हो, तुम्हारे शौहर ने मना किया हो। तो जाना मालूम है जनाब ज़ैनब क्या कहती हैं कि भैया हुसैन जब मैं करबला के लिए मदीने से निकली हूँ तो मुझे जाफर ने ही कहा था, अब्दुल्ला ने ही कहा था कि ज़ैनब पहले इमाम हुसैन के औलाद से पहले अपनी औलाद को एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना और एक को जो अपनी तरफ से कुर्बान करना। कहा अब्दुल्ला ने जो है वो इजाजत दे दी है। किसी तरह इमाम हुसैन को जो है वो मनाया, जनाब ज़ैनब ने घोड़े पर जो है वो सवार कराया, एक को इमाम हुसैन ने सवार कराया, एक को जो है जनाब अली अकबर ने सवार कराया। बच्चे जब यहाँ से जा रहे हैं तो बच्चों ने जो है वो आपस में जो है वो सलाह मशवरा कर लिया कि और तुम जो है वो मैसरा की तरफ हमला करना, मैं जो है मैमना की तरफ हमला करूंगा। 2 फौजें थी, वहां की सिंध थी, एक मैसरा और एक मैमना। एक ने कहा तुम मैसरा की तरफ हमला करना, एक ने कहा तुम मैमना की तरफ हमला करना।
दोनों बच्चे गए और आखिर में कहते कि हम कल्ब लश्कर पर जाकर शिब्र मलऊन की जो है गर्दन पर हमला कर देंगे। अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा, तसव्वुर कीजिएगा कि दो बच्चे हैं, हैदर कर्रार का जो है वो नवासे हैं और जाफर तैयार के पोते हैं, करबला की तरफ गए, हमला किया, हमला करते जा रहे हैं। मैसरा और बैमुना को फतह करने के बाद जब कल्बे लश्कर पर आए तो किसी शकी ने ऐसा वार किया जनाब औन और मोहम्मद पर कि जनाब औन जो है उनके सर पर ऐसी गुर्ज लगी, ऐसा जख्म लगा कि वहीं पर वो शहीद हो गए। जनाब मोहम्मद बाकी रहे, यानी कि रिवायत बताती है कि एक भाई फौरन शहीद हो गया, एक भाई जो है वो कुछ देर के लिए जिंदा रहा। एक भाई को जब जिंदा रहा तो क्या सदा देता है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मामू हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा सुनी, मैदान कारज़ार की तरफ आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो दोनों के लाशों को उठाया, खेमे की तरफ ले गए। अल्लाह, दो नन्हे बच्चे हैं, माँ ये मंजर देख रही है, एक तरफ औन है, एक तरफ मोहम्मद है, बीच में जनाब ज़ैनब है। तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि किसी माँ के सामने दोनों बच्चों के लाशें हो तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन जनाब ज़ैनब ने एक भी आंसू नहीं निकाला और जनाब ज़ैनब क्या कहती है मालूम है कि जिस बेटे को या जिस औलाद को मैंने अपने हुसैन भाई की तरफ कुर्बान कर दिया हो, फिर मैं क्यों उसे वापस लूं। जनाब ज़ैनब कहती है, जनाब फिजा कहती है कि ज़ैनब देख तो लो कि बच्चे वापस आए हैं। अब ज़ैनब देख तो लो कि बच्चे वापस आए हैं। जनाब ज़ैनब कह रही है कि मैंने उन्हें वापस आने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने उन्हें अपने मामू पर जान निसार करने के लिए भेजा था। अल्लाह, जनाब फिजा कहती है कि ज़ैनब देख तो लो, दोनों बच्चों के लाशें आए, दो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, माँ की आंखें हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब का सब्र है, उन्होंने आंसू नहीं बहाया, यही सोचकर कि अगर मैं आंसू बहाऊंगी अपनी औलाद पर तो ये जो गुलाम है, ये जो कनीज़े हैं, उनको किस तरह हौसला होना है। अभी तो सब बाकी है, अभी तो पूरा करबला उजड़ेगा, जहाँ 6 महीने का अली असगर भी ज़िबा होगा, जहाँ 18 साल का अली अकबर भी ज़िबा होगा। 11 मुहर्रम को जब काफिला करबला से रुखसत हुआ, कूफा के बाजारों से होता हुआ जब शाम पहुंचा ये काफिला, तो अरबाब अज़ा असीरा ने करबला यानी जो कैद हुए थे उनको जो रिहाई मिली। जब रिहाई मिली तो वहां पर जितने भी शोहदा के सर मौजूद थे सब सर दिए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, सब जो है वो अपने अपने बच्चों के सर ले रहे हैं, माए हैं, अपने अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, सरों को लाया गया। आखिर में जब 2 सर आए तो जो जालिम था उसने कहा ये 2 सर किसके हैं। किसी ने कोई आवाज न दी। जब जालिम ने दूसरी मर्तबा कहा कि ये 2 सरों की माँ कोई नहीं है क्या वो करबला में खैमों में जलकर मर गई है। इतना सुनना था कि जनाब फिजा से बर्दाश्त न हुआ। फिजा कहती है कि लाओ ये सर मेरी शहजादी के बच्चों के सर है। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त भी ये सर नहीं लिए। जब जनाब ज़ैनब से पूछा गया कि तुमने सर क्यों नहीं लिए तो मालूम है जनाब ज़ैनब क्या कहती है। जनाब ज़ैनब कहती है कि जिन बच्चों को मैंने हुसैन के लिए सदका कर दिया हो वो सदका हम पर लिया नहीं जाता, वो जायज नहीं हम पर कि वो हम सदका लें। अजरकुमुल्लाह, काफिला जो है वो वहां से रिहा हुआ, शाम से मदीने की तरफ आया। जब मदीने की तरफ आया तो जनाब ज़ैनब सबसे पहले अपने नाना के मजार पर गई, नाना के मजार से रुखसत हुई, अपने
अपनी माँ की कब्र पर गई, अपनी माँ की कब्र पर गई, वहां से रुखसत हुई। जनाब ज़ैनब की आंख में इस करबला के मंजर में या सुबह आशूर से लेकर शाम, कूफे की बाजारों से लेकर शाम से मदीने तक आंसू नहीं आए। लेकिन सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, तसव्वुर कीजिएगा, जनाब ज़ैनब जब मदीने में आई है, जब मदीने में आई, घर को खोला, जब क्या देखती है, दो छोटे छोटे मुसल्ले हैं। मुसल्लों को उठाया, अपने कलेजे से लगाया। आखिर माँ थी ना, कब तक अपने बच्चों का गम सहन करती। अरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाला मोहम्मद का हमारे से मुख्तसर से मजलिस को कबूल फरमा। अरे अल्लाह तुझे वास्ता